अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पार्ट 3 करेंगे डोमेन 5 का। और डोमेन 5 क्या है? आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। और इसका मैंने पार्ट 2 जो है ना पॉइंट नंबर 11 के ऊपर फिनिश किया था, और आज मैं है ना पॉइंट नंबर 12 से पार्ट 3 को स्टार्ट करूँगी। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। पॉइंट नंबर 12 जो है बायोमेट्रिक फैक्टर एरर रेटिंग। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ बायोमेट्रिक डिवाइस इज इट्स एक्यूरेसी. Biometric devices are rated for performance by examining the different types of error they produce. ये एक्यूरेसी के लिए मशहूर है बायोमेट्रिक, लेकिन इसमें भी एरर होते हैं, क्योंकि परफेक्ट सिर्फ अल्लाह की ज़ात है जो हर चीज़ परफेक्ट बनाता है। बाकी इंसान के अंदर एरर्स, इंसान की बनाई हुई चीज़ों में एरर आ सकते हैं। इसका पॉइंट नंबर 1 है फॉल्स रिजेक्शन रेट अकर्स व्हेन एन ऑथेंटिकेशन सिस्टम डज नॉट ऑथेंटिकेट अ वैलिड यूज़र। लाजमी है, मशीन है, गलती कर सकती है। एन एग्जाम्पल, say Dawn has registered her fingerprints and used it for authentication previously. Imagine that she uses her fingerprints to authenticate herself today, but the system incorrectly rejects her fingerprint, indicating it isn't valid. This is sometimes called a false negative authentication and called a type 1 error. ना मशीन रिजेक्ट कर देता है कि भाई ये जिस बंदे की है उस बंदे की नहीं है फिंगरप्रिंट्स ना, तो इसे टाइप 1 एरर कहा जाता है। फिर इसका पॉइंट नंबर 2 ये है कि फॉल्स एक्सेप्टेंस रेट occurs when an authentication system authenticates someone incorrectly. This is also known as false positive authentication. As an example, imagine that hacker Joe doesn't have an account and hasn't registered his fingerprint. However, he uses his fingerprint to authenticate and the system recognize him, called type 2 error. ये type 2 error है कि जो है हैकर जो है उसके पास कोई अकाउंट ही नहीं है और कभी उसने फिंगरप्रिंट को रजिस्टर ही नहीं कराया, लेकिन फिर भी है ना ऐसा हो जाता है कि उसने अपने फिंगरप्रिंट को ऑथेंटिकेट कराया और सिस्टम ने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया। ये टाइप 2 एरर होता है। इसीलिए कभी अपने दुश्मन को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। नंबर 13 जो है वो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन विथ ऑथेंटिकेशन एप्स ना। Passwords are everywhere. We use them to access our money, on our communications, even our social life. हम जानते हैं हर चीज़ के लिए आज के ज़माने में पासवर्ड चाहिए। Now we use many passwords for different reasons. So we started making our passwords more complicated and began using passwords managers to organize the dozens of hundreds of unique passwords we use. But no matter how complex our password system was, it was never enough to prevent account takeover, because all it took was one phishing email or database exploit and your password was out in this world. So if passwords are impossible to protect on your own, what do we do? क्या करना चाहिए? अगर पासवर्ड जो है वो एक वीकेस्ट फॉर्म है ना सिक्योरिटी का, that's where 2 factors comes in ना. It adds a second method of identity verification to secure your accounts. First, the
thing you know, your password, then something unique that you have, like your phone or fingerprint. By combining your password with one of these factors, attackers can access your account even if they have your password ना. दो चीज़ों को कनेक्ट करना होता है, फ़ोन और फिंगरप्रिंट को ना. द मोस्ट कॉमन two-factor system use a unique one-time code with every login attempt. Sometimes जो है आपको गूगल से भी आते हैं मैसेज और कि आप लॉग इन करते हैं और फिर आपको मैसेज आता है टेक्स्ट मैसेज में कि वी हैव सेंड यू द कोड ना. तो ये जो है ये वन ऑफ द फॉर्म है मोर सिक्योर करने का ना आपके अकाउंट को ना. दिस कोड इज टाइड टू योर अकाउंट एंड जनरेटेड बाय टोकन स्मार्टफोन और सेंड टू यू बाय टेक्स्ट मैसेजेस. ठीक है. The more modern and most secure form of two factors uses a mobile app to send an approval notification to your smartphone or smartwatch for the least hassle possible, with 95% of breaches involving account takeover. Two factors is the most effective method of prevention. ना वो जो कोड आता है फिर आप उस कोड को लिखते हैं ना, आपके टेक्स्ट मैसेज में आता है कोड ना, जो आपके स्मार्टफोन पे भी आ सकता है अगर आपने कनेक्ट किया हुआ है और आपकी स्मार्ट वॉच पे भी, जिसको भी जो भी आपने कनेक्ट किया हुआ. तो इसके 2 पॉइंट्स है. HOTP हैश बेस्ड मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड. द हैश मैसेज authentication code HMAC includes a hash function used by the HMAC ना. फिर दूसरा है TOTP, the time based one time password. Standard is similar to HOTP, however it uses a timestamp and remains valid for certain frame of time such as 30 seconds ना. कुछ जो होते हैं वो सिर्फ 30 सेकेंड के लिए रहते हैं और फिर इसके बाद ख़त्म हो जाते हैं. फिर दूसरा आता है कोड या पासवर्ड ना. अच्छा, फिर आता है पॉइंट नंबर 14, passwordless authentication ना. There is a growing trend towards passwordless authentication ना. ऐसे ऐसे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है ये भी पॉपुलर होता जा रहा है ना, passwordless होना. As mentioned previously, static password are the weakest form of authentication. Worse, as IT departments attempt to force users into creating longer, more complex password with expiration dates, users engage in risky behavior such as writing their password down or creating weaker password that are easy to remember ना. रीज़न क्या है? वो कहते हैं ना, ज़रूरत जो होती है इजाद की माँ होती है. तो क्या है कि पासवर्ड का एक्सपीरियंस वीकर रहा ना. अगर बहुत कॉम्प्लेक्स पासवर्ड बनाए जाते हैं तो फिर उसे लिखना पड़ता है क्योंकि वो याद नहीं होते हैं, और अगर इजी बनाते हैं तो बहुत जल्दी हैक हो जाते हैं. एज एन एग्जाम्पल, मैनी स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट सपोर्ट बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, जो कि हमने देखा है कि आ गया है ना, फेस आइडेंटिटी और सारे जितने भी बायोमेट्रिक हैं. द फास्ट आइडेंटिटी ऑनलाइन FIDO Alliance is an open industry association with a stated mission of reducing the over reliance on password ना. अब थोड़े अरसे में हो सकता है कि पासवर्ड की जो टेक्नोलॉजी है या पासवर्ड की जो ईजाद है वो आउटडेटेड हो जाए ना. फिर आता है पॉइंट नंबर 15, डिवाइस ऑथेंटिकेशन. टुडे more and more employees are bringing their own mobile devices to work,
and hooking them up to the network ना. बहुत से एम्प्लॉयज़ ने अब ये करना शुरू कर दिया कि उनकी जो अपनी डिवाइस होती है, जैसे अगर उनका आईफोन या टैबलेट है या फ़ोन है, वो है ना उससे नेटवर्क से कनेक्ट कर देते हैं कंपनी के. वन मेथड इज़ डिवाइस फिंगरप्रिंटिंग. Users can register their devices with the organization and associate them with their users account ना. वो फिंगरप्रिंट को उस पर रजिस्टर कर देते हैं. ड्यूरिंग registration, a device authentication system captures the characteristic of the device. When the user logs on from the device, the authentication system checks the user account for a registered device. फिर आता है पॉइंट नंबर 16. पॉइंट नंबर 16 है सर्विस ऑथेंटिकेशन. A service account is a simply user's account that an administrator created for a service or an application instead of a person ना. ये एक सर्विस अकाउंट होता है जो किसी बंदे के लिए या किसी एम्प्लॉय के लिए नहीं क्रिएट किया जाता है, बल्कि सर्विस के लिए क्रिएट किया जाता है और एप्लीकेशंस के लिए क्रिएट किया जाता है. एज एन एग्जांपल, इट्स कॉमन टू क्रिएट अ सर्विस अकाउंट फॉर थर्ड पार्टी टूल्स मॉनिटरिंग ईमेल्स इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सर्वर. माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सर्वर्स को समझना हो तो यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे क्लिप्स अवेलेबल है. सम एप्लीकेशंस हैव built-in service accounts. Example, Microsoft SQL Server has a built-in account known as the short for System Administrator account. It's common to set the properties of the accounts that the password will never expire. वो SQL सर्वर के थ्रू खुद ही पासवर्ड क्रिएट हो जाता है जो कभी एक्सपायर नहीं होता है. फिर आता है पॉइंट नंबर 17, म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन. देयर आर मैनी ओकेजन व्हेन म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन इज नीडेड. एज एन एग्जाम्पल, व्हेन अ क्लाइंट एक्सेसेस अ सर्वर, बोथ द क्लाइंट एंड द सर्वर प्रोवाइड ऑथेंटिकेशन. कितने ओकेजन पे ऐसा भी होता है कि म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन इज़ नीडेड. इसका एग्जाम्पल क्या है? जब क्लाइंट एक्सेस करता है सर्वर को, बोथ द क्लाइंट एंड द सर्वर दोनों ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करते हैं, सर्वर भी और क्लाइंट भी. दिस प्रिवेंट्स अ क्लाइंट फ्रॉम रिवीलिंग इंफॉर्मेशन टू अ राग सर्वर ना. ये राग सर्वर जो है हमने जो है पहले पढ़ चुके हैं पिछले उसके अंदर. म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन मेथड्स कॉमनली आर डिजिटल सर्टिफिकेट ना. ये म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन मेथड जो है ना वो डिजिटल सर्टिफिकेट है, और डिजिटल सर्टिफिकेट भी हम जो है इसको पढ़ चुके हैं. मैं यहाँ पर जो है ना पॉइंट नंबर 17 के ऊपर जो है पार्ट 3 को कंक्लूड करती हूँ, और इंशाल्लाह पॉइंट नंबर 18 से पार्ट नंबर 4 को स्टार्ट करूँगी. थैंक यू फॉर लिसनिंग. अस्सलाम वालेकुम.